Good morning. My name is Viren Jamba and I'm director of Blossom Learning Center. So our students are getting very good score in the PT. So if you want to get the same score, you don't need to come us. We will reach to you. So the thing is that we will just send you one type of the particularly format that how our students are working here. I just share with you a routine for a 1 week, that if your exam is after 1 week, I just share with you a 1 week routine and you will get surely very good score if you just go with that. I'll just tell you all the things in that, how many things you have to do and what's the timing for that, and how you have to do all the things to get very good score, that is 90 and near to the 90 score. So for that, if you want to get that routine from us, so please subscribe our channel and send me your particular subscribe screenshot on this particular mobile number जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. Just share with me and I'll just send you the routine within 24 hours. I'll just send you that routine. So do it as soon as possible if you want to get the formats and tips and tricks. So I need to be that you just share this particular channel with your 5 different friends, those are doing PT right now, and just share with the knowledge with them as well. So if you just do that, just once again send me the screenshot with the 5 different students on the behalf of your approach. So I'll just share with you the routine, the tips and the tricks as well. So do it as soon as possible if you want to get that score as you just see on the screen. So have a nice day. Bye. Dear students, I am from Blossom Learning Center in Ladwa. So today I am going to explain this sheet and I am going to explain all these passages in this sheet. So this is the sheet of reading and writing fill in the blanks. Okay, so we will discuss about all these passages in detail. Okay, so first of all I want to tell you that reading is one of the most important modules of PT, and you know the importance of reading and writing and reading blanks in PT. So that's why we have started this concept to explain all these sheets and download it on YouTube. So that's why first of all I want to tell you 4 to 5 things. So first of all, when you are going to start your reading and writing blanks, so you need to focus on 4 to 5 things. First of all, you have to make sense or you have to understand each passage before doing this. Next thing is that you have to apply all those grammar rules while doing reading and writing blanks. Third thing is the main thing is you need to focus on collocations also. Okay, so for collocations you can go on YouTube websites, you can go on different channels and you can search all these videos related to collocations. So the collocations are also important part when we are doing reading and writing blanks. Then next is phrasal verbs. So that is also very important part. So we have to consider all those different topics while doing reading and writing blanks. So that's why I am going to explain first passage. Okay, so this is the explanation of first passage. So we are going to start it. So you can see that in animals, movement is coordinated by a cluster of neurons in the spinal cord called the central pattern. So this is the short form is given in bracket. Okay, so you can understand one thing here, because central is also singular, pattern is also singular, so third verb will also become in singular. So we have 4 options which are given below: receptor, generator, genitors, generates. So that's why we have to choose one word which will be singular, okay, and which will be noun. So generator is the appropriate option here, so that is also singular word, so that's why we can select this word. So if we put this word, so that will be appropriate word, central pattern generator. So now we come on the second word, second option. So this produces signals that drive muscles to arithmetically. So there is a blank and there are 4 options again: act, release, contract and construct. Okay, so as you know, we have to use first form of verb with to. Okay, so all these are first form of verbs in options.
So now we have to make sense of this line. Okay, so I want to tell you one thing, that when we are talking about our body parts, so and when we use our legs for walking and for running, okay, so then when we use our body parts for doing something activity, then our muscles can shrink. जो हमारी मसल्स होती हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती हैं. ओके, सो दे कैन श्रिंक और दे कैन कॉन्ट्रैक्ट वाइल रनिंग और वॉकिंग. सो दैट्स वाई if we relate one word to our body parts, okay, in which we are doing any activity, so we can easily use one word, that is contract, and meaning of contract is shrink. Okay, shrink होना, contract होना, सिकुड़ना. तो इस वे में आप इसको यूज कर सकते हो and you can easily find out that word. Okay, so this produces signals that drive muscles to contract rhythmically in a way that produces running or walking depending on the pattern. And now again I want to tell you that because we are talking about our body parts and we are using all these body parts while running or walking, so we have 4 options: beats, rhythm, poses and pulses. Because if we are talking about our muscles, okay, and pulses, you can find out all these pulses in muscles. Okay, so pulses are the part of muscles, so that's why we can relate this word to this line and make a sense. So easily we can use pulses. Okay, pattern of pulses, because pulses are also related to muscles. So in this way we can use that option, that word. Next is a simple signal from the brain instructs the CPG to switch between different. So there is one blank, okay, which has not been given, so I want to tell you there is a blank. So we have 4 options again: modes, elements, moods or relax. So we have to make a sense of this line. So see it. A simple signal from the brain, जो सिंपल सिग्नल होता है ब्रेन से, वो इंस्ट्रक्ट करेगा वो सीपीजी को क्या करने के लिए, स्विच करने के लिए किन के बीच में, बिटवीन डिफरेंट. सो डिफरेंट क्या हो सकते हैं, फिर वो प्लूरल में होंगे वो. ओके, तो डिफरेंट क्या हो सकते हैं वो, एलिमेंट्स तो डिफरेंट नहीं होंगे, बिकॉज एलिमेंट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मशीन. ओके, so we are talking about our body part, so we can easily use modes here. Okay, so when we talk about brain, we always use modes, different modes, because जो different modes होते हैं वो already हमारे brain के अंदर होते हैं, जो हमें सिग्नल देते हैं या हमारे body parts को जो सिग्नल देते हैं. So I have already told you all these options in detail. Okay, so in first option I filled generator, in second option I filled contract, in third option I filled pulses, in fourth option in fourth option I filled modes, MODES. So in this way you can make a sense first of all, and then use grammar rules as well, or you can also use collocations or phrasal verbs. So now we come on the second passage. So second passage is that there are options, you can see all these options. So from a child's of view, so I told you about collocations, or you can say that because when we solve any passage, yeah, when we want to use, yeah, when we want to explain any passage, okay, so there are some phrases also, we can use all those phrases. So there is also a phrases in first line of this passage, from a child's of view. So we can easily use one word which is appropriate word, and that is point. जो point हम इसमें use कर सकते हैं, because this is a phrase, child's point of view, okay, and this is also a collocation. So you can easily choose that word point. Easily आप use कर सकते हो, उसको choose कर सकते हो और fill कर सकते हो. From a child's point of view, sense भी आप यहाँ देख सकते हो, sense भी बन रही है. तो easily हम इस option को fill कर सकते हैं यहाँ पे. So then we come on the next option. Is advertising on TV done to give actors the opportunity to? So now we have again 4 options: make, take, wait, break. So now I want to tell you one thing, that we will relate all these words to this line.
हम इनको रिलेट करेंगे, सेंस बनाएंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएटली हम फिट कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में. सो when we talk about rest, so this is obvious that with rest we can easily use take a rest, okay, because we can't use here make a rest, okay. rest के साथ appropriate sense नहीं बन पा रही है make की, ऐसे ही wait की, ऐसे ही break की सेंस नहीं बन पा रही है. तो appropriate जो वर्ड यहाँ पे है वो हम यूज कर सकते हैं take a rest, okay. So in this way you can easily choose this option. Now we come on the third blank. So furthermore is the main difference between programs and commercials, that commercials are for real, okay. So now I want to tell you one thing more, that we have to use connectors, okay. We have to use different types of connectors, and there is contradictory connectors. There are contradictory connectors also we can use when we are making opposite statements, या when we are making contradictions. जब हम contradictions बना रहे हैं तो हम easily क्या कर सकते हैं, हम contradictory connectors को use कर सकते हैं, ओके. सो यहाँ पे देख सकते हो आप, contradiction यहाँ पे है, contradiction यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके. बिकॉज there is something written in, या there is something said in first line which is different with the second line, जो बिल्कुल different है second line से, because after comma you can see that there are two different statements, okay, and there is a contradiction. यहाँ पे contradiction है, तो easily आप देख सकते हो कि यहाँ पे contradiction या आप opposite statements इनको कह सकते हो, ओके. सो easily हम एक word use करते हैं contradictions connectors, वैसे contradictory connectors बहुत होते हैं, तो हम यहाँ पे मैं चलो बता भी देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं. whereas हो गया, although, while, though हो गया, however हो गया. सो all these are contradictory connectors, okay. So because there are contradictory statements, so we can use here whereas programs are not. So because there is a contradiction between two lines, or these are opposite statements. So now we come on the fourth blank. So you can see that some children are able to distinguish programs and commercials, because now we are talking about two things. हम two things की बात कर रहे हैं, या we are making a comparison between two things or objects, okay. So whenever we make comparison between two persons or two things or two objects, we can easily use one word, that is preposition, and that is appropriate word is between. तो easily जब हम कंपैरिजन करेंगे टू थिंग्स के बीच में या टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो हम easily between preposition यहाँ पे यूज कर लेंगे, ओके. So I have explained this passage also, okay. So I am going to tell you all these options again. So in first we used point, in second we selected take, in third we filled whereas, in fourth option we filled between. So in this way you can choose all these options one by one with the help of all these grammar rules and collocations and phrasal verbs. Now we come on the third passage. So you can see on the screen the third passage is given. So I am going to explain it also. Although environmentalists have been warning about this for decades, so we have four options: situation, pollution, pollination and statue. So when there is a sense also, we can apply this sense, because we are talking about environmentalists here, okay. We are talking about environment here, because environmentalists are giving their views on environment for decades. So in this way, when we talk about a particular situation, okay, so yeah, when we have searched, when environmentalists have given their views for a long time, so in this way we can easily choose one option, that situation, okay, because that option is also related to this line, okay. You have to easily make a sense with that option about this situation for decades, okay. So you can easily choose this option, situation, because environmentalists
वो वार्निंग दे रहे हैं वो पीपल को, या किसी को भी वार्निंग दे रहे हैं वो उस सिचुएशन के बारे में जो हैपन हो सकती है नियर फ्यूचर में, ओके, फ्यूचर में हैपन हो सकती है, तो वार्निंग देते आ रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड. सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर सिचुएशन हियर. So we come on the next, we come on the second option here, second blank. So that is, the good news is that more and more businesses and governments are beginning to understand that without a healthy environment, the global. So there is a collocation, okay, and I want to tell you what is the meaning of collocation. So when one appropriate word goes with another appropriate word, so this is the combination of two words we use इन द फॉर्म ऑफ कोलोकेशन. ओके, सो क्या होता है कि एक अप्रोप्रिएट वर्ड को हम दूसरे अप्रोप्रिएट वर्ड से जब यूज करेंगे तो वो कोलोकेशन होती है. तो कॉम्बिनेशन में जब हम यूज करते हैं उसको, तो आई वांट टू टेल यू द सेम थिंग हियर. ओके, सो वी कैन इजीली चूज वन वर्ड विच इज रिलेटेड टू द गिवन वर्ड ग्लोबल. ओके, तो क्या है यहाँ पे कोलोकेशन, क्या बन सकती है, इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी. सो वी कैन इजीली चूज दैट वर्ड इकोनॉमी. एंड next is also a collocation. Okay, and everything that depends on it will be seriously endangered. Okay, and they are beginning to take positive. Okay, so now I want to tell you one grammar rule, that is because in combination when we want to use a noun, okay, and we have already we have already an adjective, okay, before noun. So that is the grammar rule. After adjective we always use noun. So that's why we have to choose noun here. हमको यहाँ पे noun choose करना है नीचे से, और हम देख लेंगे नीचे options जो हैं हमारे पास 4 options हैं. So active is not a noun, act is a verb. Okay, active क्या है यहाँ पे, adjective है, act यहाँ पे verb है, acting is also a verb. So that is the one option which is in the form of noun, that is action. Okay, and that is also a collocation. So okay, so positive action. So in this way we can make the sense and we can use this collocation easily. So you can see that in this passage we have used 2 collocations which are very easy, okay, which are very easy to use, and you can use all these collocations in coming जो आपके पास होंगे passages होंगे उनमें भी collocations आप use कर लोगे. Okay, so in first blank we used situation, in second we use economy, in third we use action. So now we come on the fourth passage. So that is, reading is an active process, not a one. So we can see that there is 2 opposite words. Active is opposite of passive, and passive is already given in the blanks, sorry, in the options, passive, positive, objective, proactive. So in this way we can easily use opposite of active, that is positive, sorry, that is passive. Okay, so reading is an active process, not a passive one. बिकॉज अगर हम इसको सेंस के अकॉर्डिंग समझें, क्योंकि रीडिंग क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है, हमें एक्टिव रहना पड़ता है इसमें. हम पैसिव बन के हम रीडिंग नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसे चुप हो जाएं और हम रीडिंग करते रहें. सो दैट्स वाई अगर हम सेंस भी लगाएं, इसमें सेंस भी यूज़ करें, तो ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जो वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड है, पैसिव. नाउ वी कम ऑन द सेकंड. वी ऑलवेज रीड विद इन अ कॉन्टेक्स्ट. तो जब भी हम किसी बुक को रीड करते हैं तो जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है या जो उसका कंटेंट होता है वो क्या होता है, वो डिसाइडेड होता है ऑलरेडी, वो प्री डिसाइडेड होता है, वो सिलेक्टेड होता है वो. तो इन दिस वे तो वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होगा, वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होगा. ओके, तो इन दिस वे वी कैन इजीली चूज वन वर्ड दैट इज स्पेसिफिक. ओके, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें जो भी बुक रीड करनी है हमें उसको एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही रीड करना है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जो हमें दिया गया है. ओके, और उसको रीड करने के बाद हम जो भी हमारे पास आउटकम्स होंगे या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम वो इजीली गेट कर सकते हैं. ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ये यूज किया गया है, जो अप्रोप्रिएट आप एक कोलोकेशन के रूप में भी इसको ले सकते हो. सो नाउ वी कम ऑन द थर्ड ब्लैंक. सो आई एम गोइंग टू टेल यू, वी ऑलवेज हैव अ पर्पज इन रीडिंग अ टेक्स्ट, कि हमारे पास टेक्स्ट को या बुक को पढ़ने का एक पर्पज होता है ऑलरेडी, एंड दिस विल शेप हाउ वी, और ये क्या करेगा, ये शेप करेगा कि हाउ वी इट. सो देयर इज अ ग्रामर रूल वंस अगेन, एंड दैट इज व्हेन वी यूज
any subject in the form of pronoun or noun, so after that subject we always use verb. And there is another rule that is कि जब भी हम इस सब्जेक्ट को यूज करेंगे हम देखेंगे कि वो प्लूरल है या वो सिंगुलर है. तो हमारे पास जो वी है यहाँ पे वो प्लूरल फॉर्म में है, प्रोनाउन है, दैट्स वाई वी हैव टू चूज प्लूरल वर्ब. एंड प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? विदाउट एस और ई एस. जो विदाउट एस और ई एस की होगी दैट विल बी द प्लूरल वर्ब. सो वी कैन इजिली choose one verb, okay, या one word that will be a plural verb without s or es, okay. And next thing is that we have to make sense also. हमें सेंस भी बनानी है यहाँ पे इस ग्रामर रूल को यूज करने के साथ साथ, ओके. सो देखें इसमें क्लोज एंड नियर, दीज आर नॉट वर्ब्स, ये वर्ब्स नहीं है, क्लोज और नियर वर्ब्स नहीं होती. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है? हमने अप्रोच को यूज कर लेना है, अप्रोच, ओके. दिस विल शेप हाउ वी अप्रोच इट, कि हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे जो हम रीडिंग करना चाहते हैं या उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे हमारा जो उसको रीड करने का जो पर्पज है, ओके. कि दिस विल शेप हाउ वी अप्रोच इट, कि वो शेप करेगा ऐसे ही हमारी मेंटेलिटी को शेप करेगा, वो हमें नॉलेज देगा वो, कि जैसे हम उसको अप्रोच करेंगे, ओके. सो दैट्स व्हाई वी कैन इजिली चूज दैट वर्ड अप्रोच. नेक्स्ट इज फोर्थ, आवर पर्पज एंड बैकग्राउंड नॉलेज विल ऑल्सो. So there is again grammar rule we can easily use the same grammar rule here, okay. So there is, we will use a verb which will be in first form, because there is a grammar rule, we always use first form of verb with all modal auxiliary verbs, okay. तो यहाँ पे will already दिया हुआ है, will के साथ, या आप इसको देख सकते हो ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है आपका, ओके. तो जब भी सिंपल फ्यूचर टेंस होगा आपका तो उसमें शैल और विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं ऑलरेडी. तो ये तो ग्रामर रूल हो गया. एंड नेक्स्ट अगर हम करें इसमें, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये तो ग्रामर रूल मैंने बताया आपको. एक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, कि हमने वर्ब को यूज करना है यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेंस भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके. सो आवर पर्पज एंड बैकग्राउंड नॉलेज विल ऑल्सो, जो हमारा पर्पज होगा उस रीडिंग के पीछे, या जो बैकग्राउंड नॉलेज होगी वो क्या करेगी? स्ट्रेटेजी. तो स्ट्रेटेजी को क्या करते हैं हम? स्ट्रेटेजी को तो कंक्लूड नहीं करते, ना ही हम उसको अंडरमाइन करते हैं, है ना डिटेक्ट करते हैं स्ट्रेटेजी को. डिटेक्ट मीन्स उनकी जासूसी करना, ओके. तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी को डिटरमिन करेंगे. डिटरमिन करते हैं हम ऑलवेज, स्ट्रेटेजी को निर्धारित करते हैं, ओके. प्लान जो होते हैं हमारे, तो इस वे में हम सेंस बनाते हुए इजीली ये ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेंगे, डिटरमिन, ओके. सो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू ऑल दीज ऑप्शंस. सो इन फर्स्ट ब्लैंक we used passive, in second blank we use specific, in third blank we use approach, in fourth blank we use determine. Now we come on the fifth passage. So you can see all these options are given below this passage. So I am going to explain it. Coffee is enjoyed by millions of people every day, and the coffee experience has become a staple of our modern life. And so there is, once again, there is a collocation, okay, because one word life is in a combination with another word, okay, and that is the appropriate word will be, you can also see all these options, okay. So with life one word will relate, there is culture, okay, life and culture, modern life and culture. So अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन रूल वी कैन ईजिली चूज दिस ऑप्शन. हम कल्चर को यूज कर सकते हैं ईजिली, बिकॉज ये कोलोकेशन बन रही है. ये फ्रेज आप इसको बोल सकते हो. फ्रेज भी एक क्या है? कोलोकेशन का एक पार्ट होता है जो हम कोलोकेशन के अंडर यूज करते हैं. तो मॉडर्न लाइफ एंड कल्चर हम ईजिली यहाँ से यूज कर सकते हैं. सो नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन. वाइल द करंट बॉडी ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ कॉफी ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस लाइन में, बता देता हूँ आपको. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ऑलरेडी. कंज्यूमिंग, कंज्यूम्स, कंजप्शन इज कंज्यूमिंग. सो देयर इज अ ग्रामर रूल वंस अगेन, बिकॉज हियर वी हैव टू यूज नाउन. हमें नाउन यहाँ पे यूज करना है. सो वी हैव 3 वर्ब्स. कंज्यूमिंग हो गया, कंज्यूम्स हो गया, इज कंज्यूमिंग हो गया. तो वर्ब्स हमें ऑलरेडी यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल कॉफी के बाद हमने क्या यूज करना है? यहाँ पे एक नाउन को यूज करना है, कॉफी कंजप्शन. अगर हम अप्रोप्रिएट वे में इसको एक वर्ड को चूज करें, क्योंकि कंजप्शन क्या है यहाँ पे? नाउन, एज अ नाउन यूज हो रहा है. तो इस वे में
हम इसको नाउन को यूज कर सकते हैं कंजप्शन के वे में, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको, रिलेटेड हम ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब यूज कर चुके हैं। ओके, सो दैट्स वाई, तो एक सेंटेंस में जब भी हम यूज करेंगे तो एक ही वर्ड यूज होगी जो हम ऑलरेडी रिलेटेड के रूप में यूज कर चुके हैं। सो दैट्स वाई वी चोज कंजप्शन एज अ नाउन। तो हम इसको इजिली देख सकते हैं या चूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नाउन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सो कंजप्शन यहाँ पे आप यूज करोगे। नेक्स्ट वी कम ऑन द थर्ड ब्लैंक, दैट इज विच इज पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजीज फाउंड दैट। सो यहाँ पे कॉफी के इफेक्ट्स और बेनिफिट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं कि हमारी हेल्थ के ऊपर उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो रिसर्च की गई है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि उन्होंने क्या फाउंड किया है कि जो पोटेंशियल क्या होंगे, पोटेंशियल के साथ हम कोलोकेशन के रूप में भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कॉफी, जब हम कॉफी को ड्रिंक करेंगे तो उसके क्या होंगे, उसके हमारी हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव वे में हमारे ऊपर एक क्या होगा, इफेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे पास तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, ड्रॉबैक्स हो गया, डीमेरिट्स हो गया, डाउन साइड्स हो गया, तो तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं क्योंकि हम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ओके, क्योंकि कॉफी क्या करती है हमें, कॉफी गिव्स अस एनर्जी, कॉफी मेक्स अस एक्टिव। सो इन दिस वे वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव आउटकम्स और पॉजिटिव बेनिफिट्स। ओके, तो दैट्स वाई वी कैन इजिली चूज वन पॉजिटिव वर्ड, दैट इज बेनिफिट्स, पोटेंशियल बेनिफिट्स। ओके, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड के रूप में हमने क्या यूज कर लेना है, बेनिफिट्स को यूज कर लेना है। सो इन लास्ट वी कम ऑन द लास्ट ऑप्शन, वी कम ऑन द लास्ट ब्लैंक, दैट इज सो पोटेंशियल फाउंड दैट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ मॉडरेट कॉफी ड्रिंकिंग, कि जो पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे अगर हम मॉडरेट कॉफी हम ड्रिंक करें, अगर एक हम क्वांटिटी में, एक जो हमारी क्वांटिटी होती है, ठीक है, डिसाइडेड होती है जो क्वांटिटी, ठीक है, लिमिट में रहते हुए उस कॉफी को ड्रिंक करें, तो वो क्या कर सकती है, जो रिस्क होता है ओके उसको वो कम कर सकती है एडल्ट में। ओके, स्पेसिफिकली अगर हम एडल्ट कंज्यूमर्स की बात करें जो इसको कंज्यूम करते हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, हेल्थ आउटकम्स के रूप में वो देख सकते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। सो दैट्स वाई हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, एक कोलोकेशन के रूप में अनदर वर्ड हम यहाँ पे यूज कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव वे में अगेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हेल्थ के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे नाउन हमने यूज करना है क्योंकि इनकम्स तो हेल्थ के साथ अप्रोप्रिएट वे में यूज नहीं हो सकता। ऐसे ही हेल्थ आउटकमिंग्स, हेल्थ आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो रहेगा वो क्या होगा, हेल्थ आउटकम्स। सेंस भी यहाँ पे बन पा रही है। ओके, तो इजिली हम इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, हेल्थ आउटकम्स। So again I want to tell you all these options. So in first we used culture, in second we use consumption, in third we use benefits, in fourth we use outcomes. Okay, now we come on the sixth passage. So there is mentioned, there is 5 passages again, the 5 passage is mentioned, but that is the mistake. Okay, that is the sixth passage. I want to tell you that is the sixth passage. So I am going to explain it. So the allure of the book has always been and positive. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स, पॉजिटिव का क्या हो सकता है, हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है ऑलरेडी नेगेटिव। ओके, द allure ऑफ द बुक हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। allure मीन्स टेम्पटेशन, कि जो बुक हमें टेम्प्ट करती है, जो हमें वो लुभाती है, ठीक है, इस वे में हम यहाँ पे पॉजिटिव के अपोजिट क्या यूज कर लेंगे, नेगेटिव यहाँ पे वर्ड यूज कर लेंगे। सो इजीली हम यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड ऑप्शन पे जो हमारे पास है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स बिटवीन द कवर्स हैव हेल्प्ड मैनी यंग रीडर्स। तो उन टेक्स्ट ने, उन पिक्चर्स ने क्या किया है, जो कवर्स के बीच में होती हैं, वो यंग रीडर्स की हेल्प करते हैं क्या करने में, डिस्कवर करने में। एंड डिस्कवर से रिलेटेड ही हमारे पास एक ऑप्शन है नीचे, स्मेल। तो डिस्कवर से रिलेटेड तो स्मेल हो नहीं सकता क्योंकि बुक के साथ अगर हम स्मेल यूज करें तो कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं बन पा रही है। ऐसे हील भी, यहाँ पे हील का मीनिंग होता है क्योर होना। वाउंड को जब हम बात करते हैं, वाउंड की क्योर की बात होती है। ओके, तो यहाँ पे स्टेयर होता है घूरना। तो तीनों वर्ड अपोजिट है, तीनों वर्ड की सेंस नहीं बन पा रही है, तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे होगा वो हम इजीली यूज कर लेंगे, ग्रास्प। डिस्कवर एंड ग्रास्प। ग्रास्प का मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंड करना। ओके, सो नाउ वी कम ऑन द थर्ड ब्लैंक, दैट इज
सो बट द एल्यूर हैज ऑल्सो इनेबल्ड ऑथर्स, जो एल्यूर होता है वो ऑथर्स को एनेबल बना देता है और पब्लिशर्स को कि क्या कर सकते हैं, वो जो यंग रीडर्स होंगे, ठीक है, उनकी जो डिस्पोजिशंस होंगी, उनकी जो डिजायर्स होंगी, उसको वो अपने कोर्डिंग उनको कन्विंस कर लेंगे, ओके, उनको परसुएड कर लेंगे अपने कोर्डिंग, उनको बुक्स को सेल करते हुए, ओके, कि ऐसा कंटेंट वो उनको अवेलेबल कराएंगे कि वो क्या हो जाएंगे, उनके विक्टिम बन जाएंगे। तो इस तरह का कंटेंट ही वो हर बार या सेम वे में बार बार उनसे डिमांड करेंगे, जो कौन होंगे, जो कस्टमर्स होंगे या जो रीडर्स होंगे, उन पब्लिशर से वही कंटेंट वो डिमांड करेंगे जो उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इस वे में तो हम इसको एक यहाँ पे कंपैरिजन भी किया गया है, जंक फूड का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जंक फूड हम ज़्यादा इंटरेस्टेड वे में या क्योंकि टेस्टी होता है वो, तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं उसको खाने में, ओके। तो उसी वे में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया एग्जांपल के रूप में कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लेना है, एक वर्ब को यूज़ कर लेना है, बिकॉज एक ग्रामर रूल भी यहाँ पे अगर अप्लाई करें हम, क्योंकि मेनू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर वर्ब अप्लाई करें, मेन्यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, सो दैट्स वाई व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट, सो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो दैट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज हम करेंगे, ओके। सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो दैट विल बी व्हाट विल बी सिंगुलर वर्ब इन ऑप्शंस, देखो, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ओके। व्हाट इज अ सिंगुलर वर्ब? व्हेन सिंगुलर वर्ब विल बी विद एस और एस, ओके। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब एस और एस के साथ होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टर्न्स आउट यूज करना है, ओके। बिकॉज टर्न्स आउट का मीनिंग आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इसका मीनिंग होता है डिस्चार्ज करना, रिमूव करना, ओके, डिस्चार्ज करना, ड्रॉ आउट करना, निकालना। तो हम इजिली इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टर्न्स आउट, क्योंकि दो हमारे पास वर्ब्स हैं जिनकी एंडिंग ऐसे हो रही है, एक तो है टर्न्स आउट, एक है टर्न्स इन। तो इजिली हमने क्या यूज कर लेना है, टर्न्स आउट यूज कर लेना है। नाउ वी I want to tell you all these options again. So in first we used negative, we used negative. In second we use grasp. In third we use turns out. Okay. So now we come on the last. That is the last passage of this sheet, of this worksheet. Okay. So now I am going to explain it again. So you can see that. So I am going to explain it. So private schools in the UK are redoubling their marketing efforts to foreigners. So जो यहाँ पे क्या बात हो रही है, थोड़ा हम डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं यूके में, वो क्या कर रहे हैं, रीडबलिंग कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि फॉरेनर्स यहाँ पे आए उनके स्कूल्स या कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में और वो एनरोल हो जाए वहाँ पे, ओके। सो ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द 68,000 बोर्डिंग पीपल्स मीन्स स्टूडेंट्स, कि वो बता रहे हैं कि थर्ड जो 2/3 या थर्ड जो है 68,000 टोटल स्टूडेंट्स का, उन्होंने ऑलरेडी वो इंटरेस्टेड हैं, वो एनरोल हो गए हैं वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं एक रूल बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम नीचे ऑप्शंस अगर देखें, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास क्या है, सो, सच, ऑल एंड ए एंड ऑल, ओके, बिकॉज ये सच बाय मिस्टेक यहाँ दोबारा प्रिंट हो गया है। तो 4 ऑप्शंस हैं, सो, सच, एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं एक रूल बता देना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर चुके हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट स्कूल्स सेकंड टाइम, सो वी विल यूज सच वर्ड हियर, ओके। हम सच यहाँ पे वर्ड यूज कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं प्राइवेट स्कूल्स की, तो सेकंड टाइम यहाँ पे बात हो रही है। सो इस वे में अगर हम यहाँ पे एक रूल के अकॉर्डिंग चलें तो वी कैन ईजिली चूज सच वर्ड, सच को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बात हो चुकी है उन स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल की। तो यहाँ पे सच हम यूज करेंगे, सच स्कूल्स, ओके। बट नाउ, तो अब यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा दोबारा कि बट नाउ विद मैनी यूके रेजिडेंट्स अनविलिंग और, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फॉरेनर्स तो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन स्कूल्स और कॉलेज में एनरोल होने के लिए, बट जो क्या है, नेटिव जो हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, उन्हीं के जो पीपल हैं, बट दे आर नॉट अनेबल और दे आर नॉट अनविलिंग, अनविलिंग नहीं है वो। सो अनविलिंग का एक फैमिली वर्ड आप यूज करना है आपने यहाँ पे। फैमिली वर्ड जो होता है आपको पता ही है, एंड से या और से पहले जो वर्ड है, उसी वे में जो लास्ट में आएगा और के बाद फैमिली वर्ड हमने यूज करना है।
तो यहाँ पे अनविलिंग का जो एक सेम जो वर्ड हम यूज कर लेंगे अनेबल। ओके, इजी वे में हमने क्या यूज कर लेना है, अनेबल, क्योंकि दोनों फैमिली वर्ड है। तो विद मैनी यूके रेजिडेंट्स, जो यूके रेजिडेंट्स हैं वो अनविलिंग है, वो अनेबल हैं, क्योंकि वो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते या कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो क्या होता है कि जो हाईली जो इनकी एकेडमिक जो फीस होती है या जो भी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो दैट्स वाई जो यूके जो नेटिव होंगे, जो नेटिव पीपल होंगे, वो इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई वो अनविलिंग होते हैं, अनेबल होते हैं वो। ओके, वो इंटरेस्ट नहीं लेते अपना कि वो अपने चिल्ड्रन को यहाँ पे इन स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल कराएं। सो आगे नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन। सो दैट्स वाई दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, विद मैनी यूके रेजिडेंट्स अनविलिंग और अनेबल टू अफोर्ड द फीस, टॉप बोर्डिंग स्कूल्स आर edging towards 30,000 pound a year and a cultural shift from boarding. Okay, cultural shift from boarding. तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस है हमारे पास, फार, वे, अवे, आउट। तो यहाँ पे अगेन फ्रेजल वर्ब हमने यूज करनी है, फ्रेजल वर्ब हम यूज कर लेंगे। फ्रेजल वर्ब मीन्स कि जब क्या होता है कि when verb will used with प्रेपोजिशन और एडवर्ब इन कॉम्बिनेशन, उसको फ्रेजल वर्ब हम बोलते हैं, उसका मीनिंग अलग ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लेना है, शिफ्ट अवे। तो शिफ्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन में जा रही है या जो रिलेशन में जा रही है प्रेपोजिशन, वो क्या होगी, अवे, शिफ्ट अवे। कि कल्चरल जो शिफ्ट आ रही है वो बोर्डिंग से वो क्या हो रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं उन बोर्डिंग स्कूल्स को। इस वे में जो यूके जो नेटिव पीपल हैं वो अवॉइड कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपना। सो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन को यूज कर लेना है, शिफ्ट अवे। नाउ वी कम ऑन द फोर्थ ऑप्शन। ओके, एंड देर आर फोर्थ ब्लैंक, हम फोर्थ ब्लैंक पर आते हैं। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, फॉरवर्ड, टू, ऑन, फॉर। ओके, ओवरसीज स्टूडेंट्स नाउ अकाउंट अबाउट। तो अगेन वी हैव टू यूज फ्रेजल वर्ब, हमने फ्रेजल वर्ब को दोबारा पे यूज करना है, क्योंकि अकाउंट हमारे पास क्या है, अकाउंट इज अ वर्ब, एक वर्ब के रूप में है हमारे पास ये। तो वर्ब के साथ मैंने अभी बताया आपको रूल कि हमने क्या यूज कर लेना है जब हम फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। सो वी कैन यूज या वी ऑलवेज यूज प्रेपोजिशन और एडवर्ब विद वर्ब इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो हमने एक मीनिंग, एक सेंस बना के यहाँ पे वर्ड को यूज कर लेना है, अकाउंट फॉर। ओके, जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पे क्या है, वो अकाउंट फॉर। मीनिंग होता है इसका रिस्पॉन्सिबल। तो जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं नाउ रिस्पॉन्सिबल अबाउट, कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अकाउंट फॉर का मीनिंग भी आपको क्लियर किया है, यहाँ पे अकाउंट फॉर का क्या मीनिंग है, रिस्पॉन्सिबल। तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वो इतनी इनकम जनरेट करते हैं इन स्कूल्स में। ओके, स्कूल्स के लिए यूके में। ओके, सो आई वॉन्ट टू tell you again all these options. In first we used such, in second option we used unable, in third option we used away, that is a phrasal verb with shift away, in fourth option we used for, account for. Okay, so in this way we have already explained, I have already explained all these passages to you which are given in this worksheet. Okay, so I hope you enjoyed this session. Okay, and you will understand all these passages. Okay, so all these passages are very easy. Okay, are very easy to use. So with the help of 4 to 5 things which I have already told you, that is, we have to make sense first of all, we have to understand the particular passage. Again next is we have to apply all these grammar rules. Okay, and we have to use collocations, we have also use phrasal verbs. So there are 4 to 5 things we have to consider all those things while doing reading and writing blanks. Okay, so in this way these reading and writing blanks will be easy for you when you are going to do all these reading and writing blanks. Okay, so thank you for listening to me, and thank you for joining this session. Okay, thank you students.